Welcome to Mastery of English. Please don't forget to like, comment and subscribe our channel for more updates. Welcome to Mastery of English. Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are going to discuss about the determiners. आज हम determiners के बारे में बात करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में adjectives के बारे में पढ़ा था। adjectives की मुख्तलिफ kinds के बारे में, endings के बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। आज हम determiners के बारे में पढ़ेंगे। Determiners are words such as this, those, my, their, which, they are special adjectives that are used before nouns. Basically, determiner are the words such as this, those, my, their, which. Determiners this, those, my, their, which ये basically determiners हैं. They are special adjective. हम ये कह सकते हैं कि ये special adjectives हैं that are used before nouns, जो कि noun से पहले इस्तेमाल होते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो adjectives हैं वो basic all the describing words and they are used before a noun. ये noun से पहले इस्तेमाल होते हैं. Sometimes they used at the after the noun in the sentence. But determiners are the special adjectives that are used before a noun. ये noun से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मखसूस और special जो adjectives होते हैं. For example, सबसे पहले हम पढ़ते हैं the articles. The articles, the word a and the belong to this group of words called determiners. A and the basically ये जो words हैं इस group के ये determiners कहलाते हैं. The word a and an are called indefinite articles. इनको हम indefinite articles भी कहते हैं, indefinite determiners भी कहते हैं. You can use them with singular nouns to talk about any single person or thing. जब आप किसी singular चीज या शख्स के बारे में बात कर रहे हो तो आप इनको singular nouns के साथ इस्तेमाल करते हैं. किस को? a को और an को. For example, Can you hear a bird singing? क्या आप देख सके कि एक वर्ड, क्या आप सुन सकते हैं एक परिंदे को singing गाते हुए? तो इसी तरह से do you wear a uniform to school? क्या आप स्कूल के लिए एक यूनिफॉर्म पहनते हैं? बेसिकली यहाँ पर a जो है ये यूनिफॉर्म से पहले यूज किया तो ये a क्या है? ये डिटरमिनर है. This is a picture of an elephant. ये एक elephant की picture है. Rudy is reading a book. Mom bought me a new dress today. You will need an umbrella when you go out. She eats an apple a day. So grammar tip जो है वो यहाँ पर ये है कि the article an is usually used before words. जो article an है इसको अमूमी तौर पर हम words, ऐसे words जो वावल के साथ शुरू हो रहे हो उनके साथ हम an लगाते हैं. The article a is used before words beginning with the consonant. यानी कि कुछ ऐसे words जो consonants के साथ शुरू हो रहे हों उनके साथ हम a का इस्तेमाल करते हैं और जो ऐसे words जिनकी beginning जो है वो वावल से शुरू हो रही है तो उनके साथ हम n का इस्तेमाल करते हैं. The word the is called definite article. Definite article जो है the कहलाता है, जबकि a और an indefinite article कहलाते हैं. Use the before a noun when you are talking about a certain person or thing. जब आप किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसके लिए definite article का इस्तेमाल करते हैं. For example, the telephone is ringing. यानी कि आपने मखसूस चीज की बात की है यहाँ पे the telephone is ringing के टेलीफोन जो है मखसूस सर्टेन चीज की आप बात कर रहे हो कि टेलीफोन की घंटी बज रही है. Where's the cat? Where's the cat? आप पॉइंटिंग भी कर रहे हैं where's the cat के cat कहाँ है, बिल्ली कहाँ है? I think she's under the bed. अब यहाँ पे I think मेरा ख्याल है कि she's under the bed के वो बेड के नीचे है. Tom has won the race. Tom has won the race. यानी कि जब यहाँ पर आप मखसूस शख्सियात की या चीजों के बारे में बात कर रहे हैं.
Granny is sitting in the garden. The street is very busy today. The sky is getting dark. The ice is melting. You also use the before a noun when there is only one. For example, the sun. कुछ ऐसे नाउन जो सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं, यानी कि जिनका कोई मतबादल, जिनको प्लूरल नहीं होता, जिनके ज्यादा नहीं जो चीजें होती, जो एक शय पे मुश्तमिल होता है, जो एक चीज पे मुश्तमिल होता है, आप उसके लिए दी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन, सन चूंकि एक है, दूसरा सन नहीं है, तो इसलिए हम इसके साथ दी का इस्तेमाल करते हैं। द मून, द स्काई, द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस, घर का जो देयर में बी many doors at the home, घर में बहुत सारे जो है ना वो दरवाजे हो सकते हैं, बट when you talk about the front door, जब आप फ्रंट डोर की बात कर रहे हो of my house, तो that is only one, the front door of my house। तो आपने दी का यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया कि फ्रंट डोर जो होता है वो एक ही होता है, वो एक से ज्यादा नहीं होते। So demonstrative determiners, कुछ ऐसे determiners भी होते हैं जो demonstrative होते हैं। The word this, that, these and those are determiners। ये basically determiners हैं। They are used to tell which thing or person you mean। Basically ये हमें ये बताते हैं कि आपका मुराद किस चीज के मतलब है या किस शख्स के मतलब है। So that's why these are called the demonstrative determiners। These words are called demonstrative determiners और demonstrative adjectives। आप इनको demonstrative adjectives भी कह सकते हैं, आप इनको demonstrative determiners भी कह सकते हैं। I am keeping these books, I am keeping these books। तो यहाँ पर इशारा किया जा रहा है इन किताबों के बारे में, तो इसलिए हम कहेंगे I am keeping these books। I am selling those books, I am selling those books। यहाँ पर उसने इशारा किया I am keeping these books, मेरे पास ये किताबें हैं। यहाँ पर इशारा किया I am selling those books कि मैं वो किताबें बेच रहा हूँ। इसी तरह से James lives in this house, जेम इस घर में रहता है। जेम्स लिव्स इन दिस हाउस। दिस आइसक्रीम इज डिलीशियस। हाउ मच इज दैट रैकेट? व्हाट इज दैट एनिमल? ब्रिंग मी दैट बॉल। वुड यू लाइक दिस एप्पल्स? यू यूज दिस। अब हम बात करेंगे दिस और दीज की। यू यूज दिस एंड दीज टू पॉइंट द टू पीपल आर थिंग्स नियर यू। कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास होती हैं, जब आप उनकी तरफ आपने इशारा करना होता है, उनके रेफरेंस आपने देना होता है, उनकी तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो उसके लिए दिस और दिस का इस्तेमाल होता है। दिस सिंगुलर के लिए, दिस प्लूरल्स के लिए। अगर चीजें एक से ज्यादा हैं तो आप उसके लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे, अगर एक है तो आप उसके लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे। You use that and those to point out to people are things that are further from you। कुछ ऐसी चीजें जो आपसे दूर होती हैं, आप उनके लिए that और those का इस्तेमाल करते हैं। You use this and that before singular noun। यहाँ पे बात आ गई this और that को आप singular nouns के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनसे पहले you use these and those before plural noun। plural noun से पहले आप these और those का इस्तेमाल करते हैं। Here's a table to help you remember the rules। यहाँ पर एक टेबल नीचे दिया गया है जिनसे आप रूल्स को सीखने में मदद होगी। सिंगुलर हो तो उसके लिए दिस, और दूर अगर वो जो है दूर है चीज तो सिंगुलर है, लेकिन उसके लिए आप दैट। प्लूरल के फॉर्म में दिस, दीस और दोस का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बेसिकली सवाल, क्वेश्चंस। यूज द वर्ड्स व्हाट, which and whose before nouns to ask about people or things। कहते हैं कि आप what, which, whose, आप इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं लोगों या चीजों के बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए। These words are called interrogative determiners or interrogative adjectives। आप इनको interrogative determiner या interrogative adjective कहते हैं। What size do you wear? What size do you wear? What kind of bird is that? What kind of bird is that? ये किस तरह का परिंदा है? आपका साइज क्या है जो आप पहनते हैं? What time is it? क्या वक्त हुआ है?
What color is her hair? उसके बालों का रंग क्या है? What kinds of clothes do you like to wear? आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? Which school do you go to? कौन से स्कूल आप जाते हैं? Which doll is your favorite? आपकी डॉल कौन सी पसंदीदा है? Which road leads to zoo? To the zoo? Zoo को कौन सा रास्ता जाता है? तो इस तरह से ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हम पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सवाल करते हैं। नेक्स्ट है कुछ पोजेसिव डिटर्मिनर्स। द वर्ड्स माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर आर कॉल्ड possessive determinants or possessive adjectives. Use these words before nouns to say who something belongs to. I lent Margaret my guitar. The dentist asked his patient to open her mouth. Is this your brush? So ये ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो पोजेशन को शो करवाते हैं। Here is a table to help you remember the possessive determinants. फर्स्ट पर्सन होगा तो my, are इसका प्लूरल, सेकंड your, थर्ड पर्सन his, her, its, their। तो नाजरीन, आज हमने डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा और डिटर्मिनर्स के मुख्तलिफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डेफिनेट, इंडेफिनेट, उसके बाद हमने फिर फर्दर डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर हमने इंट्रोगेटिव और फिर हम पोजेसिव डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा। तो नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मफीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe our channel for more upcoming informational videos. Thank you for watching. Please don't forget to like,